discuss about the biomineralization. Biomineralization का मतलब है synthesis of inorganic, crystalline or amorphous mineral like material by the living organisms. So जो living organisms हैं वो minerals produce करते हैं often to harden or stiffen existing tissues. जो उनके टिश्यूज़ हैं उनको और ज़्यादा हार्ड करने के लिए, एंड ऐसे टिश्यूज़ को हम मिनरलाइज्ड टिश्यू बोलते हैं. So biomineralization is the process by which the microorganism mediate the formation of minerals, that is converting an element into its insoluble form. So organisms have been producing mineralized skeletons for past 550 million years. For example, silicates in the algae and diatoms, carbonates in the invertebrates and calcium phosphates and carbonates in the vertebrates. So ये जो minerals हैं they often form structural features such as the sea shells and bones in the mammals and birds. Shells आपने देखे होंगे, जो shells होते हैं वो भी क्या है, mineral deposition से ही बने हैं. So biomineralization is the process by which the living organisms produce minerals, often to harden or stiffen the existing tissues. Biominerals perform a variety of roles in organism. Most important is support देते हैं body को, defense में help करते हैं and also protection में help करते हैं. For example, जो tortoise होता है, turtles होते हैं, उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर shells होते हैं, तो वो क्या है, मिनरल का डिपोजिशन ही है, वो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल मिनरल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड डिपॉजिटिंग बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज़ क्यूब्रा वाइडस मेटालीड्यूरेंस. सो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे कि गोल्ड क्लोराइड का यूज़ किया गया. गोल्ड क्लोराइड जो है, गोल्ड क्लोराइड इज़ अ टॉक्सिक केमिकल लिक्विड फाउंड इन नेचर, एंड बैक्टीरियाज ने क्या किया, व्हाट बैक्टीरियाज डिड कि उन्होंने गोल्ड क्लोराइड को कन्वर्ट कर दिया 99.9% प्योर गोल्ड के अंदर. सो ये जो बैक्टीरियाज है दे आर द मेटल लवर्स. सो ये जो बैक्टीरियाज थे उन्होंने क्या किया, गोल्ड क्लोराइड के ऊपर वो फीड करा, उनके लिए तो खाना ही है, उनके लिए तो न्यूट्रिएंट ही है वो, एंड उन्होंने इस वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया एक प्रेशियस मेटल के अंदर, विच इज़ गोल्ड के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल मैग्नेटोस्पाइरिलियम, मैग्नेटोटैक्टिकम. सो दे आर the organisms which are found in the geomagnetic field lines, and they have the ability to migrate along the geomagnetic field lines. So इनके पास क्या होता है, मैग्नेटोजोम्स होते हैं which comprise nanometer sized membrane bound crystals of the magnetic iron minerals organized into chains by a dedicated cytoskeleton. So this is the structure of the मैग्नेटोस्पाइरिलियम मैग्नेटोटैक्टियम बैक्टीरिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर इज़ अ मैग्नेटोजोम. मैग्नेटोजोम आपको जो दिख रहा है उसने क्या, उसकी चेन बनी हुई है, उसकी क्या बनी हुई है, चेन बनी हुई है. सो वाई आर मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियाज मैग्नेटिक, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटोजोम्स ऑर्गेनेलीज होते हैं that contain magnetite and greigite. So generally 15 to 20 magnetosomes per bacteria are present. So next है हमारे पास calcite forming bacteria. Calcite forming bacteria, calcite क्या होता है, it is a common rock forming mineral of calcium carbonate found in the limestone. It is used in the cement production. So calcite forming bacteria, a bacteria that form calcite in the presence of calcium ions, is known as the calcite forming bacteria. Used in biocement, self-healing, concrete production, removal of heavy metals and CO2 sequestration times. So biodegradation is the breakdown of organic matter by the microorganism like the bacteria or the fungi. So यहाँ पे क्या होता है कि जो microbes होते हैं वो ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 में,
carbon में, energy में, and release in organic forms like the nitrogen, phosphorus or sulfur. So basically the organic material is changed through the chemical processes from complex molecule to the simpler molecules. So complex molecule जैसे कि कोई organic contaminant है उसको simpler molecules में, जैसे कि कार्बन हो गया, CO2 हो गया, simpler molecules में उसको convert कर देना by the microorganisms is known as the biodegradation. For example, a banana peel can be reduced from cellulose to water, CO2 gas, humus in a compost. So it is important to waste management. Waste management करना बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि अगर waste इकट्ठा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा dangerous हो सकता है. सो वेस्ट भी दो तरीके का होता है. एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो डिकम्पोज हो सकता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक है, अगर वो एक्यूमुलेट होता जाता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस निकल सकती है, एंड वो केमिकल्स जो है वो सॉइल के अंदर भी सीप आउट कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल भी ख़राब हो सकता है, वहाँ की लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकती है. सो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल होता है दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो उस मैटर के ऊपर, उस वेस्ट के ऊपर फीड करते हैं, क्योंकि उनको एज अ फ्यूल की तरह काम कर रहा है. उनके लिए तो वो न्यूट्रिशन है, हमारे लिए तो वो वेस्ट है, लेकिन उनके लिए वो न्यूट्रिशन का काम करता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, पेपर हो गया, जो भी चीज़ डिग्रेड हो सकती है, जो भी चीज़ डिकम्पोज हो सकती है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So, biodegradation is the degradation of material into the environmentally acceptable products such as the water, CO2 and biomass by the action of naturally available microorganisms under normal environmental conditions. So, biodegradability क्या होता है? It is the capacity for the biological degradation of organic materials by the living organisms. Degradation time means the time needed for a substance to be completely degraded. अब जो डिग्रेडेशन टाइम है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होता है. जैसे कि पेपर को डिग्रेड होने में 2 to 4 वीक्स लगते हैं, ऑरेंज पील को डिग्रेड होने में 3 to 6 मंथ्स लगते हैं, प्लास्टिक बैग जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसको डिग्रेड होने में 10 to 20 ईयर्स लग जाते हैं, एलुमिनियम कैन जो हम यूज़ करते हैं उसमें 200 to 400 ईयर्स लग जाते हैं उसको डिग्रेड करने में, प्लास्टिक बॉटल्स 400 to 500 ईयर्स, जो ड्राइड लीव्स होते हैं उनको तो कम ही टाइम लगता है 1 to 3 मंथ्स, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया ना. नाउ हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोडिग्रेडेशन मेथड्स हो सकते हैं, वेज हो सकती हैं. द फर्स्ट वन इज़ द बायोमिनरलाइजेशन. बायोमिनरलाइजेशन का मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द बायोमिनरलाइजेशन मीन्स कि जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर, उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि CO2, वाटर, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि वाटर हो गया, CO2 हो गया, या अदर बाई प्रोडक्ट्स हो गए जैसे मीथेन है, मीथेनॉल, इथेनॉल एट्सेट्रा. Now the next one is the biotransformation. Biotransformation का मतलब है, यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का कुछ पार्ट डिग्रेड हो जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो फॉर एग्जांपल शुगर, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं शुगर प्लस में यीस्ट, जब यीस्ट को शुगर मिलता है तो वो उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्लस में CO2 इज़ रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज़ द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. माइक्रोब्स की हेल्प से जब आप डिग्रेडेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम सीवेज का जब ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज डिस्पोजल हो गया,
जिसका लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरियाज़ का यूज़ करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर उसको डिग्रेड करने के लिए। सो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन में आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ऑयल स्पिल्स है। ऑयल स्पिल्स में भी हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑयल को लाइक फीड करते हैं, उसके ऊपर उसको ईट करते हैं, एंड जो हाइड्रोकार्बन वेस्ट है उसको भी ईट करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ऑयल को मेटाबोलाइज कर लेते हैं उस वेस्ट को, एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, और जो हार्मफुल गैसेस हार्मलेस गैसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन्होंने क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, अगर हम ऑयल स्पिल्स की बात करें तो दे फीड ऑन द ऑयल एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे वाटर के अंदर और हार्मलेस गैसेस के अंदर। दैट इज़ माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, जब आप माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेडेशन करा रहे हो। देन वी हैव द एरोबिक डिग्रेडेशन। एरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब है breakdown of organic contaminants by the microorganism when oxygen is present. When oxygen is present उसको हम क्या कहेंगे, that is known as the aerobic degradation. For example आप यहाँ पे ले सकते हो xanthomonas. ओके, तो एक होता है हमारे पास एनारोबिक का मतलब है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स का बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एरोबिक और एनारोबिक में देखें तो जो एनारोबिक वाला होता है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, दैट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, एंड वहाँ पे बहुत गंदी सी पंजेंट गैस भी निकलती है। सो एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पर degradation by the eubacterias. Okay, so the next one is the in situ degradation, means वहीं पे जहाँ पे वेस्ट है वहीं पे ओरिजिनल प्लेस पे अगर आप डिग्रेडेशन करा रहे हो, दैट इज़ ओरिजिनल प्लेस पे आप डिग्रेडेशन करा रहे हो, दैट इज़ इन सीटू। एक्स सीटू मतलब आप जो भी वेस्ट है, सपोज इस लैंड पे कोई वेस्ट है, मैं उस वेस्ट को उठा करके किसी और साइट पर लेके जा रही हूँ एंड वहाँ पर डिग्रेडेशन करा रही हूँ, that is the ex situ degradation. So what are the factors affecting the biodegradation? Composed of microbial community, presence of oxygen and nutrients. Suppose करो कि कोई aerobic microorganism है, उसको ऑक्सीजन चाहिए डिग्रेडेशन के लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा डिग्रेड। अबायोटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर के बेसिस पे आप बैक्टीरियाज को डिवाइड कर सकते हो, कुछ मीज़ोफाइल्स होते हैं, हाइपोथर्मोफाइल्स होते हैं, साइक्रोफाइल्स होते हैं। सो अगर कोई साइक्रोफाइल बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पे तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा। पीएच, ऐसी कुछ एसिडोफाइल्स होते हैं, कुछ एल्कलीफाइल्स होते हैं, तो सबका अपना पीएच रेंज होता है, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट पीएच होती है। सिमिलरली सैलिनिटी, कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ हेलोफाइल्स होते हैं, कुछ को लाइक ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, कुछ नहीं सर्वाइव कर पाते सॉल्ट कंसंट्रेशन को, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर, देन प्रेडेशन, देन साइनर्जिज्म. So it is a phenomena in which the aerobic and anaerobic microorganisms support each other growth and proliferation. इस process में क्या होता है कि जो aerobic microorganism है, they invade and they destroy the host tissues, reduce the tissue oxygen concentration and redox potential, thus creating favorable conditions for the anaerobic growth and proliferation. Now what are the advantages ऑफ द बायोडिग्रेडेशन? इट कैन बी डन ऑन द साइट, जहाँ पे वेस्ट है आप वहीं पे कर सकते हो। परमानेंटली एलिमिनेट हो जाता है वेस्ट, जैसे कि मान लो पेपर है, पेपर को 2 से 4 हफ्ते लगते हैं डिग्रेड होने में, लेकिन वो कम्प्लीटली फिर डिग्रेड हो जाएगा, कम्प्लीटली एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप इंसिनरेशन करते हो, तो इंसिनरेशन में जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उस पर सारा का सारा वेस्ट को हम हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं, तो उसमें से ऐश निकल जाती है, एंड वो जो ऐश होती है फिर वो भी
हमें बच जाती है ना, कम्प्लीटली तो एलिमिनेट नहीं हुआ हमारा वेस्ट, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। इट इज़ चीपर, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, हम उसी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इट मिनिमाइजेस द डिस्ट्रक्शन, eliminates long-term liability, can be coupled with other treatment techniques as well, eliminates transportation cost, क्योंकि जैसे अगर हमारे पास बाकी के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है या बाकी जो वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, उनको फैक्ट्रीज़ में ले जाना पड़ता है वेस्ट को, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर द बायोडिग्रेडेशन। डिसएडवांटेजेस इज़ दैट सम केमिकल्स कैन बी डिग्रेडेड, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते। अननोन बाई प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, टॉक्सिसिटी ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स इज़ द प्रॉब्लम। एक्सटेंसिव मेंटेनिंग इज़ नीडेड, साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कैन अफेक्ट द एप्लीकेबिलिटी। सो कुछ ऐसी साइट्स हैं, मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट है, आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम है और वेस्ट की ज़्यादा है, तो हमें जैसे बायो रेमिडिएशन में हम करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर से हमें ऐड करना पड़ता है। एक्स सीटू जिसको हम बोलते हैं, बाहर से हम ऐड करेंगे ताकि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने ऐड करे हैं वो उस चीज़ को डिग्रेड कर सके। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बायोडिग्रेडेशन माने कि हम ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उसको इनऑर्गेनिक मैटर में मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।